So hello everyone. Today we will discuss about the problem of periodicity. ଏବେ ଯାଏ ଯେତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଲେକ୍ଚର 1 to lecture 7 ରେ ଯେତିକି ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲ ପଢ଼ିଛେ ତ ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲରେ କେମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ପିରିୟଡିସିଟି ହେଡିଂ ଥିବ क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 कौन ଅଛି ତ क्वेश्चन 1 ଅଛି for Na plus Mg2 plus Al3 plus F minus the correct order of ionic ready each. तो ऑप्शन ए will be Al3 plus greater than Mg2 plus greater than Na plus greater than F minus. ऑप्शन बी will be Al3 plus greater than Na plus greater than Mg2 plus greater than F minus. ऑप्शन सी will be F minus greater than Na plus greater than Mg2 plus greater than Al3 plus. Option D will be Na plus greater than F minus greater than Mg2 plus greater than Al3 plus. तो एमानक मध्य करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू आयोनिक रेडियस तो केमिति सॉल्व करिले देखो सिंपल क्वेश्चन देखो आयोनिक रेडियस के हमें जानिचे तापर तो कथा बोलले को जो ऑप्शन का देखो these are the isoelectronic species. These are the isoelectronic species. So what do you mean by isoelectronic species? The species in which the same number of electrons are called as isoelectronic species. Iso means same, electronic means electron. तो इनका number of electrons same. तो मुझे देखियो Al3 प्लस तो यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 10 Mg2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 12 माइनस 2 10 तो बोलो Na प्लस 11 माइनस 1 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन तो हमारा 8 माइनस तो 9 प्लस 1 is equal to 10 इलेक्ट्रॉन the number of electron is just same तो मन रखो for isoelectronic species the ionic ready is directly proportional to negative charge on element or atom and inversely proportional to positive charge. तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा इसको F minus then Na plus then Mg2 plus then Al3 plus तो C will be correct option. तो ये लिखिए हम तो ये लिखो छुआ नेक्स्ट क्वेश्चन तो मन रखियो आयोनिक रेडियस फॉर isoelectronic species ionic radius is directly proportional to negative charge and inversely proportional to positive charge. Question 2 तो क्वेश्चन 2 लिखो ionization energy of hydrogen atom in ground state
is 13.6 electron volt. The energy is released. The energy is released. The energy is released for third member of Boltzmann series is. So option A will be 13.5 electron volt. Option B will be 23.98 electron volt. Option C will be 2.856 electron volt. Option D will be 13.61 electron volt. तो ये क्वेश्चन को करिए अपन चेष्टा करो। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कांसेप्ट भी आउची पीरियोडिसिटी किछ कांसेप्ट आउची तो देखो से कोइ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ताले कि हाइड्रोजन एटम आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बुझेला the energy is released energy का release is for third member of Boltzmann series तो ये देखिए रखियो बोलो suppose n is equal to 1 n is equal to 2 n is equal to 3 n is equal to 4 n is equal to 5 हैला तो फास्ट होची हमर लेमन सीरीज एटा n is equal to 1 মানে लेमन सीरीज एटा होची बार्नर सीरीज বা बोल्मर सीरीज টিকে কোনটি থার্ড হচ্ছে তোমার পাস্কাল সিরিজ তারপরে তোমার এটা হচ্ছে ব্র্যাকেট তারপরে তোমার হচ্ছে পিথন বুঝলে তো এই গুলো কথা মনে রাখো সে কইছি কোশ্চেন রে দি এনার্জি ইজ রিলিজড আমি জানি যে we know that when electron jumps from higher to lower orbit it radiates energy that means the energy is released যেତେବେଳେ ଆମେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସୁଛେ ସେଥିରେ ଆମେ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ କରୁଛେ ଯଦି ମୁଁ when electron jumps from lower orbit to higher orbit ଦେଖେ ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସେଠି ମୋତେ ଦରକାର ଏ ଏନର୍ଜି କୁଆଡେ ଏନର୍ଜି ଆବଜର୍ବ କରୁଛେ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ମୋତେ ତେଣୁ ଏଠି ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ ହୋଇଛି ମାନେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବ थर्ड मेंबर ऑफ बोल्मर सीरीज तो एठी যদি ମୁଁ ପଚାରିବି n1 କେତେ ଆଉ n2 କେତେ तो এই দেখো n1 ହେଇଯିବ ତମର n1 ହେଇଯିବ ତମର 2 n2 ହେଇଯିବ ତମର 5 ବୁଝିଲା ଏଇଠି ତମର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା Delhi is equal to minus 13.6 into 1 by n2 square minus 1 by n1 square. এইটা নিয়ে একটু ওকে বুঝবা এই কোশ্চেনটা তোমার পিরিয়ডিসিটি রয়েছে কিন্তু স্ট্রাকচার প্যাটার্ন এর কনসেপ্ট তো এটা হচ্ছে দেখিও minus 13.6 into n2 কেতে দিয়েছি 5 দিয়েছি n2 5 तो 5 এর স্কয়ার বললে 25 মাইনাস n1 হচ্ছে 2 तो 2 the square 4 तो यहाँ इक्वलेट करो -13.6 into 25 4 25 2 सो है 4 minus 25 ताले का से -13.6 into कितना से -21 by 100 तो ये है जो माइनस देखो ये माइनस है माइनस प्लस तो कितना से 285.6
छुआ 13.6 को 21 संगे मल्टीप्लाई करियो आसीबो 285.6 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आसीबो दीटा पछको बोलेबो and आसीबो 2.856 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस इज द एनर्जी बुझिएला कोन बोले छोटा टेक्निक सिचुएशन प्रॉब्लम आईआईटी 2013 आईआईटी 2013 তাহলে মনে রাখো आयोनाइजेशन एनर्जी क्वेश्चन बहुत गुड हेबे तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें समस्त जानि जे देखो हमें जानि जे फार्मूला थिला En is equal to मोलर स्टेट माइनस 1/n2 दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो एनर्जी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़िले ना तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़िले En is equal to -2 pi square k square z square m into the 4 divided by m square h square तो हम कोई पहले En is इनवर्स प्रोपोर्शनल टू -1 by n square तो जो स्क्वायर ऑफ n इंक्रीज करिवो ताने En वैल्यू कमिवो यदि En बढ़िवो तो स्क्वायर ऑफ n कमिवो हला तो एटी जो कथा हम जानथिले जे En is equal to -13.6 by m square तो ग्राउंड स्टेट माने कोन के n equal to 1 तो n equal to 1 तो फिर -13.6 by 1 also -13.6 अरे कौन है तो सी ने -13.6 तो ग्राउंड स्टेट देखि बोलिबो तो एक क्वेश्चन जो अछि जे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज केते -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तार से मॉडुलस नि आइ मोड कर दीजिए पॉजिटिव तो ग्राउंड स्टेट बोलिले n = 1 तो तार एनर्जी के दे दियो फिर क्वेश्चन तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दियो था खाली दे था आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट then the energy is released for the third member of Boltzmann series तो कुछ असुविधा नहीं था से तुमको दे दीजिए 13.6 तो En is equal to -13.6 by n square सेट का En is equal to n square तो -13.6 n वैल्यू 1 ग्राउंड स्टेट कोई नहीं n is equal to 1 ताले -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये फार्मूला बताओ n is equal to -13.6 into 1 by n2 square minus 1 by n1 square तो बोर्ड की फार्मूला गेट थी आंसर अब मान लो कि एनर्जी रिलीज हिजे माने हमें ऊपर तो बसला बुझिला बस तारे तो फार्मूला बुक करबे आंसर करियो थार्ड नंबर सीरीज होची आंसर करियो दिस इज द आंसर लिखिए तो ये लिखुची क्वेश्चन 3 करिया ये लिखुछिबा तो ये केते ला 2.856 इलेक्ट्रॉन पर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो एमिति गुटे 300 स्ट्रक्चर ऑफ एटम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम तुम जदी बुझिनो तुम डिटेल केमिस्ट्री बुझि परियो केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ा बुझि परियो फिजिक्स भी बुझि परियो तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम मोस्ट इंपोर्टेंट तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 को दिछवा the effective nuclear charge of
helium atom is 1.7 electron volt, then the first ionization energy of helium atom तो ऑप्शन ए अछि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी अछि 23.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी अछि 39.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन डी अछि 27.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्वेश्चन को ये चेष्टा कर। तो देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन के दुटा फॉर्मूला लागै छा। तो देखो से कोइ चीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हिलियम एटम जेटा गिवन छै कि लिखलो। तो देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ हिलियम एटम दिस के छा, दैट इज Z इफेक्टिव दिस इज 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किंतु जो छा फॉर्मूला अछि मन रखियो छा, जति इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देछि आ तुमको एनर्जी पचर छा, आयोनाइजेशन एनर्जी सेठी फॉर्मूला छा E is equal to -13.6 into Z effective square divided by X square। इधर मोल ले लो, मोल कौन बोली जति गुटे एलिमेंट मतलब एटम रे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देछि, दैट इज Z इफेक्टिव। आउ तुमको एनर्जी पचर छी तने फॉर्मूला पुट करिवो E is equal to -13.6 into Z effective square by X square। आउ के बता मन से कोई चीज फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दैट इज N is equal to 1 ना स्टेबल करिवो छ। फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी रो अर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हिलियम एटम माने कोन, हिलियम गुटे इलेक्ट्रॉन पड़ी देछि। This is fast ionization energy of helium atom. The amount of energy, I repeat, the amount of energy required to remove an electron from the valence shell as isolated neutral gaseous atom are also called the ionization energy. तो fast ionization energy बोले एटी जगह में बोलिबा helium atom को कॉन्फ़िगरेशन करिबा ताहे 1:2 तने से केते नंबर स्केल रे अछि फास्ट सेल ताने N is equal to 1। यदि मु पचार जति क्वेश्चन रे फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम तुमे कोन करथा तो N is equal to 1 करथा तो भूल हे जछु। तो जहा थिबो तार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिवो, तार वैलेंस सेल को केतेटा स्केल अछि से हिसाब से लिखिबो। हला N होची माने वैलेंस सेल ए वैलेंस को हमर आ मिनिमम केते नंबर स्केल रे अछि। यदि मु कमी सोडियम कथा केते कहबा, सोडियम कथा कहले केते हिबो 1s2 2s2 2p6 3s1 बुझेला। तनी याको सजाओ फास्ट हमर 2n स्क्वायर हिसाब से सजाओ अति हिसाब फास्ट 2 और 6 2 8 ताटे केते नंबर स्केल अछि 8 नंबर स्केल तो N is equal to 3 बुझेला। तो ये पुट करो फॉर्मूला तो N होची छ तुम्हारो -13.6 सॉरी नेगेटिव मोर अछि माने माइनस परेबो तो 13.6 into Z इफेक्टिव के 1.7 रो स्क्वायर बाय N होची 1 N होची 1 and 1 रो स्क्वायर तो ये केते दिबो 13.6 into 1.7 into 1.7 तो 17 रो स्क्वायर 299। अरे 1.7 into 1.7 केते दिबो 299 तो 2.89 divided by
so divided by what तो एटा कैलकुलेट करी आसीबो तमरो 39.304 इलेक्ट्रॉन वोल्ट approximately तमरो आसीबो 39.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट this is the energy EF which is the option C is 39.3 इलेक्ट्रॉन तो option C will be correct आउ किछि जगह क्वेश्चन बनाई दिमो z इफेक्टिव एथिले दिछि सेते z इफेक्टिव देई नथिबो तो कोन एनर्जी देइबो तो एनर्जी देइछि बोले तो z इफेक्टिव काढी परिबो डेटा गुटे देइथिबो एथिले देइछि z इफेक्टिव 1.7 एटी एनर्जी काढिया पई कोइछि तो फार्मूला से एटा तो E is equal to -13.6 into z effective square by n square of mole तो this is will be answer हैला तो ये क्वेश्चन ता तुम पढिथिला IIT हैला तो IIT 2008 हैला तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ता देखिए लिखिबा छुआ क्वेश्चन पर एठी होची क्वेश्चन पर क्वेश्चन पर तो क्वेश्चन पर लिखिबा तो क्वेश्चन होची द इफेक्टिव nuclear charge of 3d electron in vanadium atomic number कितने 23 वाला एटॉमिक नंबर कितना है एटॉमिक नंबर तारा 23 है ना 23 according to Slater's rule Slater's rule આપણે કોની છે તો સે ક્વેશ્ચન ઓપ્શન A ଅଛି સરી 2.3 ઓપ્શન B ଅଛି 4.3 ઓપ્શન C ଅଛି 3.0 ઓપ્શન D ଅଛି 1.6 तो देखो सिंपल क्वेश्चन स्लेटर्स रूल जेमती क्वेश्चन करते सेमती करिया कोन करिया फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन तो करिया के चेष्टा करो तो देखो भैया एठी देखो vanadium रो एटॉमिक नंबर 23 तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3d ऑलराइट तो एठी 3d3 4s2 तबे हम काम करो हमरो सेल रे सुजिता का ऑर्बिट है ऑर्बिट जो सभी जो तुम्हारे सियो भाषा सियो 2 তারপরে 8 তারপরে 8 তারপরে 3 छा देखो এই তুমি যদি করিবো এইটা n করিবো তো এইটা n - 1 করিবো এইটা n - 2 করিবো এইটা n - 3 করিবো মাউথে কইছি क्वेश्चनটা পড়ো সে কইছি দি ইফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ অফ 3d ইলেক্ট্রন
से जदि कोई कांता द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ताले हम एटा देखा तो केवल पूरा इंडिकेटेड करछि पार्टिकुलरली से करछि दिस इज 3D इलेक्ट्रॉन तो 3D इलेक्ट्रॉन ने हमें काहे काहे जेनेटिक तो एटी क्वेश्चन है एटी दियो छ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3d3 4s2 तो एटा कोन हबो केवल से 3D इलेक्ट्रॉन होइछि तो 4s इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 0 तो एठी 3D टा n 8 टा n - 1 8 टा n - 2 8 टा n - 3 बुझिया हमें कोइ जे इफेक्टिव जेड इफेक्टिव तो सही हमर जो स्लेक्टोस रूल हमें पढ़ि दिलो से स्लेक्टोस रूल में कोन होइछि ना जदि हमें जानि छ जदि n फर्स्ट n तार कंट्रीब्यूशन करते all electron present in empties of cell to contribute 0.35 ताने कंट्रीब्यूशन करो कि तीनटा इलेक्ट्रॉन अछि गुटे इलेक्ट्रॉन तो बोलेबो ताने केते हिजुआ एटी हिजुआ 2 into 0.35 प्लस तापर देखो all electron present in n-1 substance or dipole cell to contribute 1 2 सिग्मा तो ये 1 लिखो ताले 1 into d सबसेट पे d a by 1 और nsnp पे हमें 0.85 नोटे एटी जेनेरेटर d लगे लिखा जाउछ तो 1 दे दिबो ताले केते इलेक्ट्रॉन एटा को छाडी दी एटा को छाडी दे हम केते इलेक्ट्रॉन टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन करे दबा ताले 6 2 8 6 2 8 16 2 18 ताले एटा कैलकुलेट करो आसीबो केते तो एटा आसीबो तुमरो 18 प्लस एटा केते 7.0 हां केते से 18.7 हला तापर तो एटा हमर भाग कोन सिग्मा भाग तापर हम को जेड इफेक्टिव तो देखो तो ये देखिबा z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा तो z बोले एटॉमिक नंबर केते दिजी 23 तो 23 माइनस वैल्यू ऑफ सिग्मा केते पाइले वैल्यू ऑफ सिग्मा पाइले 18.7 तो 18.7 लिखो 23 माइनस 18.7 केते आसीबो 4.3 तो एटा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट সম্বন্ধে রয়েছে তুমি ভাবলো কোন তুমি যদি এটি কইতে না যে ইফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ অফ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন ইন ভ্যালেনিয়াম তাহলে তুমি এইটাকে n লেখা তো 3 2 5 5 1 তাহলে 4 into 0.35 কিছু সময় মানে এই করতে তো ভুলে যাও পার্টিকুলারলি যদি 3D কইছি তাহলে 3D কো নবা 4s কন্ট্রিবিউশন 0 করিবা যদি সি কইতা তাহলে 4s কো তাহলে 4s কো রখি 3D টাকে 0 লিখতে তো দিস ইজ ইউর आंसर 4.3 तो बुझिएला एटा लिखिए क्वेश्चन 5 देखिए क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 देखो क्वेश्चन 5 which is the common factor of Rb plus माने वीडियो krypton Dr minus is that they तो ऑप्शन ए अछि कोन है same number of valence electron option B have
sorry, same magnitude of effective nuclear charge, effective nuclear charge C have same magnitude of fast ionization potential, ionization potential with the ionization energy. D will be R isoelectronic species, तो ये कौन हो कोई भी चेष्टा करो। तो देखो क्रिप्टन रो एटॉमिक नंबर होची 36 हमें जाने छे क्रिप्टन रो एटॉमिक नंबर है 36 अब देखो रुबिडियम प्लस तार एटॉमिक नंबर केते हो 37 Br माइनस केते हो 35 तो ब्रोमीन रो एटॉमिक नंबर 35 क्रिप्टन 36 रुबिडियम 37 जब यार इलेक्ट्रॉन केते पचाइबे तो देखो Rb प्लस अछि Rb प्लस ताले 37 माइनस 1 हेते 36 आ क्रिप्टन तो एटॉमिक नंबर 36 आ Br माइनस में केते जो 35 प्लस 1 ताले 36 ताले एमाने आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है व्हाट डू यू मीन बाय आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस द स्पेसिस इन व्हिच these are same number of electron तो these are called isoelectronic species एमानकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम तापर देखला से जे फर्स्ट ऑप्शन है सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हां जदि एटॉमिक नंबर समान हो जेता वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समान हो ताले केते हो 2 8 है 18 8 ताले समस्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते 8 है कोन पाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान ताले A हो तापर B हो कि have same magnitude of effective nuclear charge तो देखो समान इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समान केले पबो आ D have same magnitude of fast ionization potential एमानकर fast ionization energy समान होते पबो नै तो ऑप्शन A एंड D will be correct तो ये लिखि देछो ताकि हेडिंग पे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 6 में कौन है छुआ the correct order of ionic rating ऑप्शन ए indium 3 plus greater than Sn4 plus greater than strontium Sr2 plus greater than rubidium plus option B Sn4 plus greater than indium 3 plus greater than Sr2 plus greater than Rb plus option C Rb plus then indium 3 plus
SR2 प्लस तापर SN4 प्लस ऑप्शन डी RB प्लस देन SR2 प्लस देन indium 3 प्लस greater than SN4 प्लस तो एमानक मध्यरु करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रिंग छ हम समस्त जानि जे आयोनिक रिंग रे जदि एमती थिबो हमें कोन करिबा ना फास्ट रे आसीबो तुमर एनायन तापर तुमर आसीबो कोइथि एटम तापर तुमर आसीबो केटायनिक पार्ट एटा कोइथि फास्ट आसीबो एनायन अकॉर्डिंग टू आयोनिक रेटिंग ए दुटा फॉलो करिछा फास्ट एनायन डेटा देन एटम देन केटायन तो एनायन और एटम ना कांस्टेंट तो ये अछि केटायनिक पार्ट रे जो देखो सबटु कम का +1 तापर 2 तापर 3 तापर 4 এই রোটা ঠিক এটি দেখো যদি +1 আছে তাহলে 3 প্লাস আছে তাহলে 2 হবে তাই না তো অপশন বি ক্লিক করে তো এটা দেখি तो এটা কি বুঝিছো পেনি কোশ্চেন 7 तो क्वेश्चन 7 को the most abundant element in earth crust है ऑप्शन ए देखिए एल्युमिनियम ऑप्शन बी देखिए तुम्हारा आयरन ऑप्शन सी होची ऑक्सीजन ऑप्शन डी होची सिलिकॉन तो से होची द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कांसेप्ट मन रखियो क्वेश्चन आसे द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ crust के ऑक्सीजन बुझला है सिंपल क्वेश्चन 8 तो लिख दो the question 8 देखो question 8 देखो arrange isoelectronic species arrange isoelectronic species according to atomic size देखो एटॉमिक साइज हिसाब से सजेइबो तो ऑप्शन ए नंबर अछि O2 minus O2 minus greater than N3 minus greater than F minus greater than Na plus greater than Mg2 plus option B N3 minus then O2 minus then F minus then Na plus then Mg2 plus option C F minus then N3 minus then O2 minus then Mg2 plus then Na plus option D Mg2 plus then Na plus then F minus then O2 minus then N3 minus तो एमानक मध्य को एगुला फास्ट होची मन रखो एगुला को कोन होची ए जो एलिमेंट गुली में रखी छे मुली को सेमान को एगुला जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक तो यार पर तो Mg2 plus तारा माइनस 10 इलेक्ट्रॉन Na plus 10 इलेक्ट्रॉन F minus 10 इलेक्ट्रॉन N3 minus 10 इलेक्ट्रॉन O2 minus 10 इलेक्ट्रॉन माने इस स्पेसिफिक व्हिच सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक तो एगुला को हम केमिति एटॉमिक साइज हिसाब रे अरेंज करिबा केमिति पूरा कॉन्सेप्ट अछि साइज इज यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल टू z बोलते एटॉमिक नंबर
तो जदि जहाँ साइज पड़ो तार एटॉमिक नंबर कम कम पे बुझे तो एटॉमिक नंबर सब कम का देखा नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8 फ्लोरीन 9 सोडियम 11 एनो 12 तो एक बार तो क्या पूछो यार 9 यूज यार यूज 12 यार यूज 8 तो सब कम का 7 तापर 8 तापर 9 तापर 11 माने एटॉमिक नंबर जदि कमिबो ताले साइज यूज पड़िबो तो बी विल बी करेक्ट तो এটা देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन এটা তোমরা আসলে লিখবা नीट 2016 सिंपल क्वेश्चन देखिए तो ये पोजीशन क्वेश्चन 9 Question 9. Question 9 is in group 13. In group 13, arrange the order of ionization energy. Ionization energy. The option A, boron greater than aluminum greater than gallium greater than indium greater than helium. The option B, boron greater than gallium greater than aluminum greater than indium. Option C, indium greater than gallium. Option D, and gallium and gallium. Sorry. तो ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଅର୍ଡର ଅଫ ଆୟୋନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି କାହାର ଅଧିକା ଦେଖ ତମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେड କୋन ଭାବୁଛ एक्सपेक्टेड कौन भावुको जे ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋରନ୍ ତାପରେ ଆଲୁମିନିୟମ ତାପରେ ଗେଲିୟମ ତାପରେ ଇଣ୍ଡିୟମ ତାପରେ तो ଆମେ ଜାଣିଛେ डीप सॉरी हमारा ग्रुप वाइज बाय डाउन द ग्रुप बाय टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस कौन बाय न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस मोस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीजेस तो हमर एक्सपेक्टेड वैल्यू कथा कोन दिला जे बोरन तो कमी जाउछ माने बोरन रो ठीक है एटा ठीक बात को मैंने छोड़ हेलो तो ये पूरे कांसेप्ट को देखो तो एक तो मेरा से टेरियम एरिया से तो इंडियम एरिया से तो बोरन एरिया से तो गैलियम एरिया से तो এইটাও ডিসটার্ব মানে ডিউ টু কার্বনের কন্ট্রাকশন এটা আমি পরে দিছি তোমার আয়োনাইজেশন পটেনশিয়াল তো ফার্স্ট আসবে তোমার বোরন তারপরে আসবে এটা অপশন বি এর পয়েন্ট বুঝলে তো এটা লিখে নিও ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটা আসলে তোমার জেই মেন্স 2008 লিখে নিও ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সরি लेकिन এটা লিখব দিছো क्वेश्चन 10 तो मन रखियो टॉप टू
bottom by down the group ionization energy decrease. Question 10. Arrange in order of electron affinity. तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन ग्रेटर देन सल्फर ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन आयोडीन, ऑप्शन बी आयोडीन ग्रेटर देन सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन क्लोरीन, ऑप्शन सी क्लोरीन ग्रेटर देन आयोडीन ग्रेटर देन सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ऑप्शन डी सल्फर ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन आयोडीन। तो এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট এই কোশ্চেনটা আমি বারবার বলছি ছড়া যে অক্সিজেন সলফর হচ্ছে গ্রুপ যুগল। আরে এগুলো কি বুঝিব? হ্যাঁ, তো দেখো গ্রুপ যুগল কি কি অক্সিজেন আর সলফর, গ্রুপ সলফর যদি দেখিবা ক্লোরিন আর আয়োডিন। আমি জানি যে ছুয়া অ্যাকর্ডিং টু ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি আমি জানি যে গ্রুপ ওয়াইজ ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি ডিক্রিজ করে, কিন্তু মনে রাখিও पूरा पीरियोडिक टेबल रे क्लोरीन रो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत एज कंपेयर टू फ्लोरीन भी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दृष्टि कोन हो ना क्लोरीन इज ग्रेटर देन आयोडीन बुझेला। तापर কথা कोन ग्रुप सुगुलो की हो ऑक्सीजन ग्रेटर देन सल्फर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो किंतु মনে রাখিও গ্রুপ সত্তর इज ग्रेटर देन ग्रुप सुगुलो। आगे आसो क्लोरीन ग्रेटर देन आयोडीन देन ऑक्सीजन सल्फर। ताने कि आसी फास्ट तो किस क्लोरीन ग्रेटर देन आयोडीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन सल्फर। सॉरी सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन ना तो सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन। कौन पाए सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन है? अरे ऑक्सीजन रो 8 एयर में यार मुझे 15 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करियो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करियो यार आसी 1s2 2s2 2p6 सॉरी 8 ना 2p4 और यार आसी 1s2 2s2 2p सॉरी सल्फर जो सुगुलो ऑक्सीजन 8 2 1s2 2s2 2p6 3s2 2 4 10 12 12 40 देखो एठी देखो यार टोटल 2p4 यार 3p4 तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम जानी चाहिए the amount of energy released when an electron is added to the valence shell neutral isolated gaseous atom। तो कहारो एमान को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहां दिखा जदि mo एठी इलेक्ट्रॉन एड करी माने छुआ तो कहारो माने स्टेबिलिटी की दिजो ये तो ऑलरेडी देखो 2p4 एमाने हाफ फ्री होती कि फुली फ्री होती तो कहा जाता है सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन बुझे देन सल्फर क्लोरीन ग्रेटर देन आयोडीन ग्रेटर देन सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन इज मोर करेक्ट। तो এটা ऑप्शन हो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन है ना। तो এটা মনে রাখবে ছুয়া তো লিখবে तो এটা লিখব ছুয়া তাহলে क्वेश्चन रिलेटेड 12টা क्वेश्चन করিবা।
क्वेश्चन 11 अछि del h is equal to dash. ऑप्शन ए अछि नेगेटिव ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन बी अछि नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑप्शन सी अछि नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ऑप्शन डी अछि 0। देखो हम समस्त जानि जे इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलो लिखेंगे तो लिखो जी क्वेश्चन 12 लिखो H plus H minus arrange the atomic radius, arrange the atomic radius। देखो एगुड़ा को जदी एगुड़ा को मध्य लेक्चर रे कोइ हाइड्रोजन अछि H plus अछि H minus अछि केमति करिया फास्ट होछि anion एमति क्वेश्चन में कोइ दे anion तापर आसे तुमर एटम माने कांस्टेंट देथियो तापर तुमर आसे केटायनिक पार्ट। तो फास्ट जदी सपोज ऑप्शन दे दिया H plus ग्रेटर देन H minus ग्रेटर देन हाइड्रोजन, ऑप्शन बी सपोज काटा हाइड्रोजन सॉरी H minus greater than hydrogen greater than H plus, ऑप्शन सी था हाइड्रोजन H plus H minus, ऑप्शन डी था सब H plus H minus सॉरी हाइड्रोजन H plus। तो की नहीं था बच्चा बीटा नेगेटिव पार्ट एनायनिक पार्ट तापर एटम तापर लेटर एटा होची छ एटॉमिक रेडियस रो कॉन्सेप्ट। एटॉमिक रेडियस तो मुझे एमती बोलछला तो फास्ट आसो एनायनिक पार्ट तापर एटम माने कांस्टेंट देता हाइड्रोजन में कांस्टेंट अछि माने एटम ना से नेगेटिव ना पॉजिटिव एटम तो एटम तापर एनायनिक पार्ट। तो ये मन करे ये लिखिनो छ इंपोर्टेंट लिखो जी क्वेश्चन 13 से कोई in periodic table highest ionization energy is option A chlorine, option B chlorine, option C helium, option D। देखिए पूरा पीरियोडिक टेबल रे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी छ हीलियम। मुझे पछे में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के तो ये हो छ हाईएस्ट मेरा मन रखो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब क्लोरीन का होची हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब हीलियम का हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन बोली मुझे पूरा पीरियोडिक टेबल रे हीलियम रो आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका, पूरा पीरियोडिक टेबल रे क्लोरीन रो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिका, अब पूरा पीरियोडिक टेबल रे फ्लोरीन रो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिका। बुझे तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 14 से कुछ according to
penetration effect the four subcell is तो ऑप्शन ए अछि डी एफ एस ई, ऑप्शन बी एस टी डी एफ, ऑप्शन सी पी टी एफ एस, ऑप्शन डी एफ एस डी पी। तो एमानक मध्य माने जो एस सबसेल बी सबसेल डी सबसेल एफ सबसेल मध्य पेनिट्रेशन इफेक्ट का रहता जी छुआ न्यूक्लियस पाखरे रहइबो तार पेनिट्रेशन इफेक्ट दिया देखो जी न्यूक्लियस पाखरे जेइबो न्यूक्लियस पाखरे जेइबो तार पेनिट्रेशन इफेक्ट होती है को बोली बुझिले तेणु एस को देखा देन डी रो देन न्यूक्लियस पाखरे जे रहइबो तार पेनिट्रेशन होती है लिखि दे ए क्वेश्चन जो तुम पढ़तिला नीट 2004 बुझिला এটা सिंपल क्वेश्चन ओके। तो छुआ एतिक क्वेश्चन आमे पढ़ले जो बड़ा क्वेश्चन पढ़ले यदि क्वेश्चन में किसी डाउट थियो मते कमेंट सेक्शन में जणाइबो। तो आज के लेक्चर हम सरी जाउ पूरा पीरियोडिक टेबल सीरीज सरी जाउ एटा पके सला परे हमरो प्लेलिस्ट बने देबा या पर तुम मते कमेंट करियो कोडा पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेला ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री मो होची केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी कि तुम यदि न्यूक्लियर केमिस्ट्री बुझिबो भलो होला। तो वीडियो भल लगुला लाइक शेयर वीडियो भल लगुला लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो जल्दी